our courtroom management and enhance our courtroom management practices. During this session, we will covering all three important areas. First, professional work, which is include introduction, factual aspects, emerging trends. Second topic is office work, which is containing organizational structure, version of SO, organizational structure version 2.26.0. And second topic is team space and team folder. And second, last, customer relation management. And our last topic is court work, which is containing quality management system and case management system. And last is modules of internship. Our internship includes 1.4, 1.5, which is a practical aspect, and 2.5 SM 3.5. These are the practical aspects which are we containing in the modules. So after this, we will containing presentation, slideshow presentation by our CTO and CPO sir. And after that, we will containing question answer and your feedback. Now I invite our respected speaker to begin our training session. Now I call CEO sir to CEO platform and contain your training session. Over to you, sir. Okay, thank you. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, okay. Rest of the participant keep your video in mute mode so that presentation could run into a smooth manner. So at very starting, I'm just going to summarize the presentation so far we have made. Uh, just I'm going to share my screen so that we could. Okay. Is my screen Yes, yes. being shared with you, Madam Moderator? Yes, it's visible. Okay, good. With the help of just a minute. Okay. Okay. Right now, as you can see that it is our invitation letter wherein the topics have been mentioned in detail as per our assignment. The today's presentation from 1.1 to 1.3 has been assigned to me myself, and from 2.1 up to 2.3 has been assigned to our CTU, and 3.3, 3.1 and 3.2 actually these set of activities belongs to our chief operation officer, but due to some litigational work and discharge, because he is busy in disposal of some litigational assets, that's why I would once again make a presentation on the point 3.1 and 3.2. Thereafter, our chief people officer, as usual, youngest member of our team members, will give his presentation on 3.3. Okay, let's start. Professional work. इसमें हम आपको थोड़ा सा समराइज करें से इंट्रोडक्शन सेशन में हमारा एक एम्फेसिस रहा है कि हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन में हमारे जो पास्ट के मीटिंग्स और सेशंस रहे हैं उनको एक ब्रीफ में हम लोग शेयर करते आए हैं। तो पहले तो बहुत ही एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि पिछले साल के जितने भी हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड टास्क थे वो सारे के सारे टास्क इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई have been completed and documented in proper manner. Soon we will get a digitized version of all those documents relating to the governance, which your form
has gone into in the last financial year. Then a question would arise into your mind that what kind of facilities do you get from those study materials or those documents. So I would say that in case of any difficulty, you will get all the necessary inputs from those documents. तो वो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उस वो काफी काम आएगा विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक एंड प्रॉपर पेज मार्किंग. आपको कभी भी या टीम मेंबर को कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो वहां से उस डेटाबेस से वो एक्सेस कर लेंगे. तो अभी हम लोग उसको आगे आने वाले इनकमिंग मीटिंग्स में देखने को मिलेगा कि कैसे वो रेफरेंस बुक के तौर पे हम लोग को काम आएगा. तो इंट्रोडक्शन वो तो हमारे गवर्नेंस का था. फिलहाल में यहाँ पे चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन है, FY27 का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में एक तो ये कि लास्ट ईयर में हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन थे. अगर आप कैटलॉग पे जाके देखेंगे तो उसमें लेटर नंबर 6 और लेटर नंबर 14 मिलेगा आपको. तो कहेंगे कि ये हमें कैसे मिलेगा, तो हमने कहा ना कि आपको आने वाले कल में एक पूरा नोटिफिकेशन टेबल मिल जाएगा विद द हाइपरलिंक. इसमें आप देखेंगे, इसमें आप पाएंगे कि लेटर नंबर 6 यहाँ पे जो है लेटर नंबर 6 आप यू कैन सी इजली एट द सेल नंबर 6 letter number 6 with hypermark which was conducted on 6/7/2025 and letter report number 20 report number 14 that is at serial number 14 which was conducted on 4th October 2025. तो ये 2 सेशंस थे जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन पिछली बार होल्ड किए गए थे उसके प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट मिल जाएंगे. बट फॉर द ब्रीफ I am just going to give you a brief summary about what was the content of on those sessions in those sessions. तो आप जैसे उसमें देखेंगे तो हम यहाँ से अभी there are some issues with the hyperlink, but we can go there at the report number 6 easily by sliding our document. Report number 6. Okay. 6. Okay. You can see it. तो ये हमारा पिछले साल का रिपोर्ट नंबर 6 था. तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ही बता दें कि उस बार देखिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट मैनुअल पे बात किया था. तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही छोटे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. तो इसमें हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 एंगल से, जिसमें 2 एंगल से 1.1 में स्टेजेस थे कि हमारे आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो हम लोग स्टेज फ्रॉम ब्रीफ अप टू द केस रिकॉर्ड नंबर, मतलब केस हमारा केस एंगेजमेंट लेके केस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने तक के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं उसमें हम अपने प्रोसेस को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको डॉक्यूमेंट भी किया था. उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ ऑपरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. इसमें स्कोप ऑफ ऑपरेशन में हम लोगों ने कुल इसको 4 भागों में अगेन 4 डायमेंशंस में इसको डिस्कस किया था कि हम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फॉलो करते हैं और उस दौरान जो भी हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप ऑर्गेनिकली डेवलप किए हैं और उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं, वो कितने उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है. तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंगल से भी हम लोगों ने कई पॉइंट्स उसमें अडॉप्ट किए हैं. क्वालिटी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट के एंगल से भी उसमें कदम उठाए गए थे, स्टैंडर्डाइज किया गया था. और कभी जरूरत पड़ने पे फ्लोर पे कोई मैन पावर काम कर रहा है, उसको कोई देन एंड देयर डिसीजंस लेना है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो और उसका डिस्क्रिशनरी पावर कैसे एक्सरसाइज करे उस पे था. और इन सब कार्यों में ध्यान देने के लिए कि कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना चाहिए, जो बॉटम लाइन इफेक्ट हम लोग बोलते थे कि अगर हमारा ग्रास रूट पे हमारा एग्जीक्यूटिव हमारी जो क्लियर टीम है या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है अगर उन्हें पता हो कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का कॉस्ट इम्पैक्ट कैसे आता है तो इस तरीके से वो एक इफिशिएंट डिसीजन ले पाएंगे. जैसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे मनी की भी सेविंग होती है या कभी कभी टाइम इज इसेंशियल्स, तो वहां पे टाइम को हम सरप्लस टाइम के को सेव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे भले उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा कास्ट पे करना पड़े. तो इस तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर
हमारे एग्जीक्यूटिव को रहता है और हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, ये हमने डिस्कस किया था। और पिछले साल के जो सेकेंड पॉइंट था, पॉइंट ऑफ जनरेशन, जो सेकेंड टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे हम लोगों ने एक मोटा 2 एंगल से इसको ब्रेक डाउन किया था कि मैन पावर के एंगल से रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, और दूसरा मटेरियल यानी फिजिकल रिसोर्स के एंगल से रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। फिर सारा डिटेल वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, ये विद द हाइपरलिंक। यस, Excuse me, sir. Sir, your screen is not being shared with me. I think there is some- kindly reload the screen. Madam moderator, could you assist me whether same problem is being with you also? No, it's visible. Okay. I think your internet is Okay. slow. Then I would request to you, rest of the participant, could you assure me whether my screen is visible to all of you or not? A few of them may say. Visible, sir. Okay. That means, respected CTO, kindly check the technical issues from your side. Okay, sir. तो देन उसमें हम लोगों ने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग इसको 3 साइड से इसमें 2 भाग में बांटे थे। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें अलग अलग हम लोगों ने साइकिल, गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे। ये थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन सेशन में आप लोग को रिवाइज करा रहे थे। इंट्रोडक्शन सेशन क्या, एक्चुअली जो सिलेबस का सेकेंड पार्ट था, फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है। तो इंट्रोडक्शन में ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन जो हम लोगों ने अब तक पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 2 बार होल्ड किया था, उसके नंबर्स का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देना, और उनके अंदर के जो कंटेंट थे वो क्या थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो लेटर नंबर 6 था, वैसे ही लेटर नंबर 14 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आप पाएंगे कि 6 के बाद, actually I could not get sufficient time to proper bookmark the relevant reports, but with the help of technology we could get it easily. Okay, ये देखिए आप, हम लोग का रिपोर्ट नंबर 14 था, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेशंस पे था। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेशंस जो है हम लोग होल्ड किए थे, उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। तो उसमें आप देखेंगे सीआरएम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मॉड्यूल्स था 2 सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक था यूज केस। तो आप पाएंगे कि व्हाट आई वांट टू से हियर दैट विद द अगेन आई एम कमिंग एट द आवर main topic in the point 1.1, that is marked as introductions. My duty was to remind you and recall you about those content which we have shared along with previous year administrative sessions, so that we could refresh a memory relating to the previous administrative session. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक पर्पस था। सेकेंड पॉइंट जो 1.2 है हमारे टॉपिक का, उसमें फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम ये कहेंगे कि जो स्कोप ऑफ वर्क था, जो हमारे लास्ट ईयर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेशंस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो काफी फार एंड वाइड है, और हम लोग अब उसी के यूज केस पे धीरे धीरे अपने को अपग्रेड करेंगे। तो जैसे अब फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने थोड़ा सा शेयर करना काफी रेलिवेंट होगा यहाँ पे, कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हम लोगों ने किए थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसको डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, और वो डॉक्यूमेंट एट एनी टाइम will be available to all the team member at his or her fingertip. In this process, even our CTO and our Chief People Officer CPO will always be ready and willing to help those members who does want to use the relevant document. तो हम फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम आते हैं। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम 3 बातों को यहाँ पे रिफरेंस करेंगे। इसको हम ऐसे कर लें कि इसको हम स्क्रीन शेयर पे कर लें, ताकि पॉइंट पे हम लोग, हाँ ओके, ये हमारा हो जाएगा चैप्टर्स, ताकि हम अपने चैप्टर्स को फोकस करते हुए अपने रेस्ट ऑफ द मैटर पे जाए। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में देखेंगे, तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम एक आप लोग को यहाँ पे अपने जो कलेक्टेड मटेरियल्स है विच वी हैव चोजन फॉर द पर्पज ऑफ माय प्रेजेंटेशंस, उसमें
आप देखेंगे कि हमने उसके टाइटल लिखा है मॉड्यूल्स नोटिफिकेशन टेबल और SLHAR FY 2026 ऐसे करके लिखा है। तो कहेंगे ये फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में आप शेयर कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि हम लोगों ने जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, पहले तो उसको हम लोगों ने एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसको हम कहेंगे ये देखिए टोटल आप ध्यान से देखिए कि इसमें 116 पेजेस हैं। कहेंगे कि इसको हम एक पल के लिए ब्रीफ कर ले, छोटा कर ले। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने जो एक समराइज किया, उसको आप देखेंगे तो उसका कैटलॉग ये है, और ये एज पर माय PDF शीट टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 160। टोटल 116 पेज में हम लोगों ने पिछले साल के सारे डॉक्यूमेंट, इवन पिछले क्या उससे पहले के जो अप टू द 7 ईयर के जो हमारे रेलिवेंट डेटा थे, उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया। काफी मेहनत लगी इसमें, और इसको हम लोगों ने हाइपरलिंक पे लिया है, और विथ प्रॉपर पेज मार्किंग अनेक्जर्स डेट। आप पाएंगे कि हमारे ये जो पिछले जितने भी डॉक्यूमेंट है, रेलिवेंट पीस ऑफ रिसर्च आउटपुट्स थे, उन सबको हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। और उस डॉक्यूमेंट की टाइटल किया है कि SLH एनुअल रिपोर्ट FY 26 ऐसे करके। तो ये उसका इंडेक्स है, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, अभी आगे जाके हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। बस फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कौन कौन से सेगमेंट को कवर किए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रीफेस है, तो बकायदे प्रीफेस में आपको मिल जाएगा कि प्रीफेस पे एक छोटा सा हम इसको जस्ट आई एम गोइंग टू नॉट डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स, but the purpose of referring this document here is that you may get a kind of glimpse that what kind of approach that your firm following for a better way of management. That's why I am just sharing this index page. तो ये हमारा एनुअल रिपोर्ट का इंडेक्स है। तो इसमें एक छोटा छोटा हम इंडेक्स ही थोड़ा सा रिफर कर दे रहे हैं। तो प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, उसके बाद कैलेंडर है। कैलेंडर में हम लोग को थे एज यूजुअल always we do prefer the implementation of the list of programs mentioned or found placed into our calendar. तो कैलेंडर को हम लोगों ने यहाँ पे किए, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए डिस्कस किए गए थे, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइंड किया है। और क्या क्या उस अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या माइलस्टोन अचीव किए, उसकी भी हम लोग लिस्ट किए हैं। पेज नंबर 6 to 7 पे है इसके। कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट है, वर्कशीट है, नॉमेनक्लेचर, और पूरे ऑपरेशन के दौरान जो नॉमेनक्लेचर हम लोग यूज करते थे उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ये पेज नंबर 12, जैसे पेज नंबर नॉमेनक्लेचर है हमारा, पेज नंबर 10 to 12। अगर इसको देखेंगे तो पेज नंबर 10 to 12 पे जाके आपको नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा। जैसे देखिए ये सारे वर्ड हम लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान इंप्लीमेंट किए थे और अक्सर यूज करते हैं, ताकि हमारी टीम सप्लाई चेन समझ पाए कि अच्छा हमें क्या करना है। अदरवाइज जनरल लैंग्वेज में भी हम लोग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए अपने नॉमेनक्लेचर को हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के काफी क्लोज रखते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ द एब्रेविएशंस और नॉमेनक्लेचर। तो इसमें आप पाएंगे कि ये सब वर्ड हम लोग अक्सर यूज करते थे, तो उसको हमने यहाँ पे कैटलॉग कर दिया है। इसके साथ ही हम लोग कभी कभी ये यूज करते थे, कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते थे, गोल्डन रूल, शॉर्ट थ्योरी, पेस्टल थ्योरी। तो ये क्या है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। कहेंगे इसके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, तो हमारा ये कहना है कि प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे रिपोर्ट्स थे वहीं से हम लोगों ने डेटा माइनिंग करके इसको तैयार किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि हम लोगों ने पिछले साल के सारे जितने भी रिपोर्ट्स थे उसमें वैल्यू ऐड करते हुए इस तरीके से तैयार किया है। फिर लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम, रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन में जो फाइनेंशियल टारगेट थे उसको भी हम लोगों ने वहां पे प्लेस इन किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है,
first time your firm has designed a new kind of product in a sense, जिसको हम लोग कहते हैं लीगल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसका पूरा पूरा हम लोगों ने मॉड्यूल्स डिजाइन किया है। ये पेज नंबर 32 टू 52 ये भी एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। इसका हम बस इंडेक्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। पेज नंबर 32 पे देखेंगे आप, तो उसमें आप पाएंगे, देखिए इंडेक्स है, ये हमारे लैब का इंडेक्स है। हम लोगों ने लीगल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी इंटर्नीज को ट्रेन करने के लिए एक पूरा पूरा सिलेबस डिजाइन किया है। तो इससे क्या हुआ कि इसमें आप पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे मॉड्यूल्स है 4 है, और ईच मॉड्यूल्स को हम लोगों ने अगेन 5 सब मॉड्यूल्स में बाइफरकेट किया है। तो और उसमें से 4 सब मॉड्यूल्स हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे हैं और एक प्रैक्टिकल पे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का ये है कि एटलीस्ट 5 आवर्स का एक सब मॉड्यूल्स है, और तो इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा उसमें हम लोग एकेडमिक जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे नहीं ट्रेन करेंगे, बल्कि हमारे एडवोकेसी के पर्पज से, हमारे पेपर फाइलिंग के पर्पज से, या हमारे डिलीवरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको थ्योरेटिकली हम कैसे बच्चों को शेयर करें, ताकि जब वो फ्लोर पे जाए प्रैक्टिकल स्किल में उसको टेस्ट करें तो उन्हें वो बिल्कुल यूज केस दिखे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने मॉड्यूल्स को बनाया है। तो जैसे आप इसके नाम को देखिए तो इंग्लिश है, ओके, क्लिनिकल लैंग्वेज है, लीगल स्टडी है। तो फर्स्ट मॉड्यूल्स में ही सारे के सारे हमारे लास्ट 3 ईयर या 5 ईयर तक के थ्योरेटिकल पेपर्स, स्टैट्यूट्स को हम लोगों ने कवर कर लिए। उसके बाद के जो हमारे सब मॉड्यूल्स हैं वो फुली डेडिकेटेड टू द पेपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। तो जिसमें आप पाएंगे जैसे प्री ट्रायल मैनेजमेंट, इसमें आप देखोगे अंदर जाके, इसमें अंदर डिटेल देखेंगे तो आप पाएंगे कि केस जब इंगेजमेंट होता है वहां से लेके सीआरए नंबर जनरेट होने तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन कौन से होते हैं, और हमारे क्लर्क को, चीफ क्लर्क को, सुपरवाइजर को कहाँ कहाँ डिफिकल्टी जाती है, कैसे नोटिस रिसीविंग में क्या दिक्कत है। उसी में देखिए प्रिपरेशन ऑफ पेपर बुक, कैसे इंडेक्स तैयार करते हैं, उसमें कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, पेज कहीं मिस हो गया तो कैसे पेज ऐड करते हैं। वैसे प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग पे हम लोग उसमें हैं। तो प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग में भी आप देखेंगे कि फाइलिंग से पहले क्या क्या बेसिक चीजें हैं, डीपीआई कैसे मेंटेन किया जाता है, हमारा वर्कफ्लो कैसा हो, ये सब हमारे इंटर्नशिप के मॉड्यूल्स में है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी है और उसका प्रैक्टिकल स्किल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। फिर जब कभी हमारी इंटर्नीज या कोई अगर ऑब्जेक्ट ट्रायल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में है। इसके सोर्स डॉक्यूमेंट भी है। इस तरीके से सेकेंड मॉड्यूल्स तैयार किया है। अगेन आई वुड रिपीट हियर, each sub-modules, the theory aspect of each sub-modules require at least 5 hours of lecture. Thus, in each modules, we have to invest at least 20 hours of lecture. Lecture might be in physical mode or digital mode, but some of content of the lectures will be reflected into practical aspects of each modules last sub modules. तो सारे लास्ट सब मॉड्यूल्स जो 1.5 है, 2.5 है, 3.5 और 4.5 ये प्रैक्टिकल स्किल है। इसमें उस मॉड्यूल्स के जो 4 सब मॉड्यूल्स है उनको रिफ्लेक्ट किया गया। तो आप इसमें इस तरीके से हम लोगों ने अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि वी आर जस्ट गोइंग टू रोल आउट आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो उसमें हम अपने इंटर्नीज के लिए हम क्या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए एक्सपेक्ट करते हैं उनके एंगल से और इंडस्ट्रीज के एंगल से, उसको हम लोगों ने डिजाइन डिफाइन किया, इसको डिलीवर करेंगे। ये भी हमारे एक तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो हम लोगों ने देखे हैं, लीगल प्रोसेस में जो देखे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीगल प्रोसेस में जो देखा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। तो ये एक हम लोगों ने डेवलप किया है, इसको आगे जाके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे नोटिफिकेशन टेबल्स को हम लोगों ने यहाँ पे छोटे में डिस्कस किया। तो ये फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में एक हमारा हो गया। इसमें एक और भी पॉइंट था जो हमने अभी तक हम लोगों ने पूरे एनुअल रिपोर्ट का पूरा डेटा शीट यहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, हाँ सॉरी। तो एक मॉड्यूल्स का हमने इंडेक्स यहाँ पे डिस्कस किया, एक एनुअल रिपोर्ट का। तो देखिए एनुअल रिपोर्ट का ये हमने इंडेक्स डिस्कस किया। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज माय दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम लोगों ने इंटर्नशिप का जो ये इंडेक्स था एक तरीके से ये था। अब इसका प्रॉपर इंडेक्स अभी आप लोग को मिल जाएगा। ये मॉड्यूल्स का इंडेक्स है, वैसे इंटर्नशिप का भी एक इंडेक्स बना हुआ है।
जो हर इंटर्नीज जो भी आएंगे रजिस्ट्रेशन के समय उनको पूरी उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन के समय सर्टेन अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, उनको पूरा इंटर्नशिप का एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, 37 पेज की है, उसमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्लस ये मॉड्यूल्स भी रहेगा, ताकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर गेटिंग द JDU ID फ्रॉम द बैक ऑफिस, देयर ऑनगोइंग ट्रेनिंग सेशंस विल स्टार्ट ऑन। तो हमने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का इंडेक्स शेयर किया और यहाँ पे अपने लैब अपने मॉड्यूल्स का इंडेक्स शेयर किया। बस इसमें एक छोटा सा बच गया है, उसको भी हम बता दें कि जो एनुअल रिपोर्ट का हमारा इंडेक्स है उसको ध्यान से देखें, थोड़ा सा बच गया, इसको हम लोग देख लें। तो इसमें हमारे लैब के प्रोग्राम थे, उसके बाद नोटिफिकेशन में सारे नोटिफिकेशन जो हम लोग 31 एडमिनिस्ट्रेटिव 31 नोटिफिकेशन जारी किए थे उसको हमने क्लब किया है, इसमें है, इसकी लिस्ट है, और उस सभी के सभी इन्विटेशन और रिपोर्ट को हम लोगों ने कंपाइल किया है, पेज नंबर 55 अप टू 160। इस तरीके से हम लोगों ने सारे लास्ट ईयर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जितने भी टास्क एग्जीक्यूट किए थे, कंप्लीट किए थे, फिनिश किए थे या इवन अनफिनिश्ड रह गए, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइल किया है। और इस तरीके से हमने अपने जो टीम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट था लास्ट ईयर का उसको डॉक्यूमेंट किया है। तो ये फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में बताना हमारे लिए काफी जरूरी था, आप लोगों से शेयर किया। अब आते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स में। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम थोड़ा सा आप लोगों से ये शेयर करें कि जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर में 6th और रिपोर्ट नंबर 14 के कंटेंट डिस्कस किए, उन्हीं यूज्ड नॉमेनक्लेचर को हम अगेन इस एंगल से भी देख सकते हैं। तो जैसे प्रोफेशनल वर्क एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एडवोकेट, लीगल ब्रेन और नॉन लीगल ब्रेन, दो ही सेगमेंट उनके, अब देखेंगे तो कितने सेगमेंट में काम करते हैं। एक होता है जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, पर्सनल सेगमेंट पे लेवल पे काम करते हैं। तो प्रोफेशनल वर्क में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन, फैक्चुअल एस्पेक्ट और इमर्जिंग ट्रेंड्स को ऐसे करके डिजाइन किया। वही व्यक्ति जब ऑफिस पे आके इन हाउस काउंसिल के तौर पे काम करते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं ऑफिस वर्क में, वैसे उनका MSCP बनता है एज पर योर फर्म पॉलिसी। वैसे ही जब वो कोर्ट के लिए साइंड होते हैं तो कोर्ट वर्क करते हैं। तो चूंकि ये हमारा ट्रेनिंग सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेशंस के नाम से इसको टाइटल किया गया है, इसलिए इन 3 सेगमेंट में जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं बस हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा एक लीगल ब्रेन हो चाहे नॉन लीगल ब्रेन हो, जब प्रोफेशनल वर्क करता है और उस वर्क में से वो सेगमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किए विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट। तो उसमें अब कहेंगे अच्छा उसके इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो अब एक लीगल ब्रेन हो चाहे नॉन लीगल ब्रेन हो, हमारे टीम के जो एग्जीक्यूटिव सेगमेंट है, वेरी सून, बहुत जल्दी हम अपने एग्जीक्यूटिव सेगमेंट को भी रोल आउट करने की इच्छा रखते हैं। उसमें हमारे करंट जो फ्लोर पे एग्जीक्यूशंस देखते हैं रॉबिन सिंह है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में फॉर्म इनको इंडक्ट कर ले ये अपने डिजिटल डेटाबेस पे, तो ये रिमोटली भी इसको एक्सेस कर पाएंगे और बहुत ही इफिशियंट मैनर में पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को मॉनिटर कर लेंगे, कमांड कर लेंगे और रेगुलेट कर लेंगे। तो उनके सपोर्ट के लिए हमारे बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो टीम मेंबर्स है वो भी हेल्प के लिए बिल्कुल से रेडी रहेंगे। तो आने वाले कल में हम अपने यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो आप पाओगे कि हमें किस पे सेगमेंट पे और बेहतर काम करने की जरूरत है। जैसे केस रिलेशन जो CRM में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को अपने डिजिटल डेटाबेस पे स्विच कर लिया है। तो जैसे उसका ये हमारा CRM का पूरा पोर्टल है, इस पे हम लोग अपने को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसमें डेटा फीडिंग काफी बेहतर तरीके से हुई है। उसमें जैसे हम होम पेज पे जाए तो उसमें काफी बेहतर तरीके से डेटा फीडिंग किया गया है। CTO के लेवल पे आप देखेंगे रेगुलर मैनर में सर्टेन टास्क कंप्लीटेड, सर्टेन ऑनगोइंग टास्क ऑलरेडी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर और कुछ अभी येट टू बी प्रोसीड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसको हम लोग मीट करते हुए अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को अपने CRM पोर्टल पे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। वैसे ही इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से हमने अपने इमर्जिंग ट्रेंड्स को, अगर इमर्जिंग ट्रेंड में अपने रिस्क
मैनेज करने के लिए क्या किया है, तो हम टेबल एक हमारे पास एप्लीकेशन है, इसको हम लोग रोल आउट करने जा रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। कहेंगे इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी प्रोजेक्ट की हम ट्रैकिंग कर पाएंगे समय रहते, उसमें क्या स्थिति है, कहाँ इंप्रूवमेंट है, कहाँ पे कॉन्स्टेंट आ रहा है। ये प्रोडक्ट डिजाइन से लेके प्रोजेक्ट, आप कहेंगे कि ये पूरा पूरा प्रोसेस कहाँ तक जाता है, तो प्रोसेस में आपको याद हो कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट पीएमपी एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, आप लोग बैक इन में जाके देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे, लेटर नंबर हम रिफर कर दे रहे हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने रिपोर्ट नंबर 0006 FY25-26 में। तो उसमें एक जगह पे है, देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट कुल 5 स्टेप्स होते हैं। प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होता है, फिर प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसका मॉनिटरिंग करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं और लास्ट में उसको क्लोज करते हैं। तो आप प्रोजेक्ट का देखिए इनिशिएशन में, यानी प्रोजेक्ट की डिजाइन से लेके प्रोजेक्ट के प्लानिंग तक, उसके एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, इन सभी को हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट सेगमेंट में ले रहे हैं, ताकि जो टेबल में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ में प्रोजेक्ट का भी एप्लीकेशन है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के सेगमेंट में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसको हम लोग, यानी जो और नए नए तरीके की डिफिकल्टीज आ सकती है, उसको हर टीम मेंबर्स जो ऑनबोर्डेड है वो अपने लेवल पे देख सके और समय रहते उसमें कैसे काम करना है वो समझ जाएगा। टाइम टू टाइम हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करते जाएंगे, उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। रियल टाइम में उनके पास अपडेट्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, ताकि उन्हें कमांड फॉलो करने के लिए किसी को फोन न करना पड़े, उनके सिस्टम पे दिखाता जाएगा, वहां से इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ये सारे के सारे डेटा फ्लो कस्टमाइज डोमेन पे होगा, किसी का इंडिविजुअल मेल इसमें इंगेज नहीं होगा एज यूजुअल। और इस डेटा पे उनके द्वारा किए गए एफर्ट का बाकायदे ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट होता है। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट होता है तो उससे उनकी एमएससीपी डिसाइड करने में मदद मिलती है। हम अगेन कहेंगे कि जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके सारे के सारे पास्ट के जितने भी एफर्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पे बाकायदे ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि हमारी कौन सा टीम मेंबर किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, उसी के बेसिस पे आपको बोनस, एमएससीपी इस तरीके से फर्म अवार्ड करती है। तो ये छोटा सा हमारा सेगमेंट था। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय टास्क ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को समराइज कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बैक का लेटर नंबर 6, लेटर नंबर 14 की चर्चा की। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने करेंटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट शेयर किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हेल्प करेगा, हमें बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स में हमने कुछ एप्लीकेशन शेयर की बात की। एप्लीकेशंस और भी हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स में। हमने अपने जैसे सीआरएम की बात किया है, सीआरएम के बाद हमने एक टेबल्स की बात की। वैसे ही जीआर सर्च पे हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें हमारे जो अब तक के डेटाबेस है उस पे ये हमारा एजेंटिक एआई है, जो हमारे डेटाबेस पे हमारी हेल्प करता है। इसमें हमें किसी जेनेरिक एआई की मदद नहीं लेनी है, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम को और भी हेल्प मिल पाए। और इन सभी के सभी चीजों के लिए उनके पास हमारा पूरा पूरा वर्क ड्राइव का भी एक्सेस है। और एज यूजुअल हमारा जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है उनके एक फिंगर टिप पे उनको अवेलेबल होगा, कि 1 सेकेंड से ज्यादा उन्हें नहीं टाइम लगेगा किसी भी मेल को देखने के लिए और किसी भी चैट को देखने के लिए, कहाँ कब किसने उनको क्या चीज फ्लो किया, कभी कोई भी फाइल कब कितना फ्लो हुआ। थोड़ा सा हम फास्ट पेस देख रहे हैं स्क्रीन पे, हो सकता है लैगिंग हो रही हो, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम को काफी हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को हेल्प करने के लिए बिल्डअप किया है। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है, फ्रॉम 1.1 अप टू 1.3 केम टू at its end, and from here onward the next segment of presentation for the purpose of next
topic of the presentation directly with the consent of our moderator, ma'am. I am assigning the task to our CTO, Mr. Mayank Singh. Over to you. Uh, Thank you for the presentation. Now I invite Mr. CTO sir to get this platform to yourself and present your slideshow. CTO sir. Okay, I am sharing my screen. Okay, don't keep during the process of integration, just enlighten the audience and participant what are you doing right now. Do Okay, not keep the platform vastless. Okay. I am just sharing my screen. Okay, I have shared my screen. Kindly, CRO ma'am, assist Yes, me yes. that is the screen my Assist me, sir. visible. Yes. Okay, ma'am. So I am switching my screen to the um, um, task that I have been assigned uh, to give the presentation on on two office work, including 2.1 organizational structure, 2.2 team space and team folder, and CRM. So as of CTO, I have been assigned the to present this slide. So this is a slide we are discussing on the training session of administrative, that is this SLS slash ADM 1 M1 Q2 FI 2627. So under office work, the first point is organizational structure. So I am clicking on 2.1 organizational structure. Yes. So this My request is that kindly forgive me. I have taken a lot of time. That's why rest of the participants are requested to make themselves a little bit robust and uh, yes, sir. efficient. Okay. Okay, sir. So under this organizational structure 26, before 2026, uh, I would say the approach was centralized around the CEO. The task was overburdened on CEO. So this OS 2026 gives an overview of the decentralization approach, and it also enhance the corporate accountability to each department. The department name is CTO, CFO, CRO, CPO, and COO. So this is the decentralization of the roles and responsibility for each department. Under this, we have done many tasks like first is QMS manual. The right side of the screen is overviewing the cover the first page of SLS manual. The second is LEP 2026. So I am now clicking on LEP 2026. So this is our 2026. Under this 2026, we have four modules for our internees. Uh, LEP is the legal entrepreneurship program. LEP is the I think LEP is the core pillar of our professional development of an internee. So this module again contains this SM. SM is sub module. So under each module, there is four sub module and one practical skill. So this module one contains four subjects: English, clinical, legal education, legal study, land law and local law, then practical skill. Like this, we have all the four module, and every four module have this four sub module and one practical skill. So I'm going on to next page. Notifications. So we have produced this amount of documents, our SLS documents, uh, in 2026 year, FY 2026 year. So we have this list of index that we have prepared. Going to the next slide, worksheet. Worksheet is the
n number of tasks that is going to be performed by an internee in future to achieve a benchmark to this SLH training. In this worksheet, we have very unique model of OTR, one-time registration. So these are the 1, 2, 3 and these things, but OTR is the here unique thing that we will discuss further. So now 2.1 is over. 2.2 is team space and team folder. Let me go to the first slide. Yes, now this 2.1 is over. 2.2 is team space and team folder. So I am uh, clicking on team space and team folder. So this will direct onto the slide of team space and team folder. So what is team space and what is team folder? Team space, I think team space is a digital ecosystem. It is a digital ecosystem uh, provided by a platform. So it's a dedicated workspace for each department. What is department here? Let me click on the department word. So again, we are on to the slide number 2. So here's the department CTO, department CFO. So these are the departments. So go to the next slide. Team space, and so each this team space is a dedicated workspace for each department. So it's an ecosystem. It's a digital ecosystem which help in organizing the module relevant to the specific needs. Then what are the needs? In SLS manual, there is a term called need and expectation. So from there, you can know more about need and expectation and requirement of the project. Uh, so the project is the main lead that will be helped by CRM team space. So team space is a digital ecosystem. So CRM team space is our digital team space. So I have to show one thing on slide number 2.2. The team space is this. Next, the team folder. Team folder is into the Zoho Work Drive. We have compartmentalized many compartment and classified the things. See the folder structure layout. SLS02 OU, that means operation unit. SLS03 CU, that is compliance unit. SLS04, that is HR unit. Then again further OU is divided into subcategory. These 4 subcategory. So these sub 4 category are used to communicate within the department and the department to CEO. These are the internal wiring structure that is given by Zoho CRM. So third is CRM. So now our 2.3 topic is CRM. CRM is customer relationship module. As the name suggests, there is a relationship between customer and the service provider. So this is the relationship management. So what is CRM is doing? It's the core activity of the CRM. See, this is central admin. So something is there in the central, that is here, it is called central admin. Then many sub branches are there, like sales team, marketing admin, pre-sale, order management admin, legal admin. So these are the workflow. 1, 2, 3, 4, 5. These are the workflow that will be automated. The process is called automation. That will be automated by the CRM on the Zoho platform. So CRM is the main core platform which moderates and execute the automation and with the help of workflow rules. So next is workflow. See the diagram. Suppose SLH on this is a sales work diagram, sales workflow. The first note is SLS. The first note is like lead that we have provided, that we have received a lead. Then moving to next node, we have order processing. Then next node, we had a packaging, then shipping, then fulfilled. This is called delivery. So this is a workflow. The workflow is a digital pipeline that is going from one node to another node, from initial to its final phase. So the rules which involves in the pipeline
uh, the process is called automation. So what is automation? Moving to the next slide. Automation. Automation, the first point, read this first point. Workflow rules automates the execution of action. It is not the action, it is the execution of action based on SOP. The SOP which we have produced, which we have derived from our past experience, that SOP will be used within the workflow rules. Example, for example, back office domain, that is back office address saturnlawhouse.com, can automatically send an email to the user when the task is complete. When the task is complete, this circle indicates a process is going on. Then it is executed to the condition 1. If the task is complete, it will automatically generate an email showing for thank you. Like I have this, let me share one automation that I have executed as of CTO. This thing, automation.html. See, the first name, the task is there. I have entered the task, and again I entered the next task. By submitting this, we don't have to thank you for submitting the response. This is the automatic generated email that was automatically generated and sent by the back office. This is an example of automation. Sorry to It will interrupt. automatically. Hello. Yes, ma'am. No, it's okay. I think you're not visible. It's visible. Okay, okay. My screen sharing is, ma'am. Yes, yes, it's visible. Yes. Okay. Go on. Go on. Carry on. Automation. Then our next slide is workflow and automation. So the workflow is the rules and automation is the process. uh, these are the first rectangle. Then we have a rhombus, then again SLS 0234. These are the conditional algos. Algos is the abbreviation of algorithm. So when we go into the tech department, uh, there's a algorithm is itself a logical process, but the conditional algorithm is like this process only will be executed when a specific condition is satisfied by a task. Then it will be transferred into the task number 2. So suppose we have to do a QCC of a document. So the document will be start from entry, that is from SLS01. SLS01 will pass the document to SLS02. SLS02 will re-evaluate the loop that yes, it is for QCC. Then it will send the document to SLS03 through option 1. So it's a condition that if this a QCC is a document for QCC, then document for QCC is a condition. And when this condition is satisfied, then it will be transferred from SLS02 to SLS03. So a specific condition is fulfilled, then it will be automated to the next process. So SLS03 will get the document. Then if it will have a confusion or any ask question, then it will again return to B by this path to SLS02. If this is resolved, then it will be automated to SLS03 again. Then SLS03 will choose option A and send to SLS04, or it will create a new connection and using direct path to SLS04. It will be based upon the type of document. And then the document is if is QC'd here, then it if has any question, then it will send to SLS02 using option number 2. Otherwise, using option number B, they will be sent to again SLS01. So it's an automated process using workflow rules, that a document is not passing on every stage and creating a heat and noise factor. It will automate and go through a digital pipeline and smoothly uh, do the task and will return to the SLS01 to its origin node. So this is an operational process. The main thing is operation. In our department, operation, this automation will help to operation department. That's why we have a bracket on this operation. So next slide. Yes, these are the references that I have used.
you can go to this. The blue one is hyperlink. So yes, thank you for the time and participation. Okay, thank you, ma'am. Over to CRO, ma'am. Thank you for the presentation. Now let's move to the CPO, sir. Mr. CPO, to perform your presentation. The platform is yours. Am I audible, CPO, sir? Yes, ma'am. You are audible. The platform is yours. Now present your slide. Wait a minute. I just start my presentation. Kindly turn on your screen. Is my screen visible? Yes, yes, it's visible. So, we, I present my slide, which is 3.3, where I talk about case management system in legal administration and legal administration and execution component of case management system. What are the role of administrative authority in case management? Quality management system in legal administration. And we will talk about e-filing and digital administration. Benefit of case management system and what are the challenges of legal administration and what are the future of legal administration. So let's start with case management system in legal administration. In first case management system in legal administration, we talk about introduction. छोटे से इंट्रोडक्शन से बात करते हैं. केस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ मेथड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लीगल केसेस इफेक्टिवली. बहुत ही अच्छे तरीके से केस को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज वे में उसको प्रेजेंट करना, ये केस मैनेजमेंट सिस्टम देखता है. इसकी मीनिंग की बात की जाए तो इट इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स लॉयर एंड लॉ ऑफिसर्स ट्रैक केसेस, डॉक्यूमेंट एंड कोर्ट डेट्स. क्या कोर्ट की डेट है, कब उसे प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट तो ट्रैक कैसे करना है, ये उसको देखने के लिए मदद मिलता है. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है तो इम्प्रूव इफिशियंसी, प्रभाव होता है कि उसको अच्छी से दिखाने, रिव्यूज, डिले, डेटा नॉइज कंट्रोल करना, इंश्योर प्रॉपर केस हैंडलिंग. एंड इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इट हेल्प्स लीगल प्रोफेशनल मैनेज वर्क सिस्टमैटिकली एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस. जो इसके कई सारे वैसे तो इम्पोर्टेंस है, पर जो इम्पोर्टेंस मतलब नेक्स्ट लेवल पे हैं वो है सिस्टमैटिकली एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस देना. एंड सेकेंड वन इज लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन. इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग लीगल वर्क. हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके पीछे सुपरवाइजर होता है जो सुपरवाइज करता है, कंट्रोलिंग करता है लीगल वर्क. एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इन्वॉल्व्स कीपिंग केस फाइल्स, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, अपडेट एंड सिक्योर. जो क्लाइंट की लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उनको सिक्योर करना कि वो थर्ड पार्टी के हाथ में ना लग जाए. Case monitoring, tracking the progress of cases from filing to final judgment. स्टार्टिंग टू एंड तक हमें ये देखना रहता है कि क्या केस की कब फाइलिंग होती है, डेट कब आता है और उसको फाइनल जजमेंट कब आता है. एंड वर्क फ्लो कोऑर्डिनेशन, वी नो दैट कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन any organization to make it better and ensuring that all tasks are completed on time and by the appropriate person. It's mean जो एक समय सीमा के अंदर
उस काम को पूरा कर दिया जाए एंड कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू उसे किया जाए, ना कि किसी थर्ड पर्सन के, जिससे हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन अचीव नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड वन इज component of case management system. Client related information update, which means maintaining details such as name, contact information and case history of client. क्लाइंट का क्या नाम है, उसका मैटर क्या है और उस केस की हिस्ट्री क्या है, इस चीज को अच्छे से अपडेट करना, अप टू डेट करना। एंड केस रिकॉर्ड, जिसे हम लोग एनेक्सर भी कहते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन एंड कोर्ट ऑर्डर। ये हमें हर एक छोटे छोटे पहलू पे मदद करता है अप टू डेट रहने के लिए कि, एंड कभी कभी ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित कर देता है केस जिताने में, जजमेंट अच्छा निकल जाता है। एंड वो डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग पेपर बुक पे कहते हैं, मैनेजिंग पिटीशन, एफिडेविट, एविडेंस एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं, इन्हें कलेक्ट किया जाता है कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। एंड फोर्थ इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, इसे हम लोग शेड्यूलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। मेंटेनिंग कैलेंडर फॉर हियरिंग, मीटिंग एंड डेडलाइंस, इसकी जो कब हमारे केस की हियरिंग होगी, उसकी डेडलाइन क्या होगी, ये सब इसके थ्रू पता चलता है। फोर्थ इज रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन in case management system. Case allocation, assigning case to lawyer or legal teams according to their expertise. जो जिस केस को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट होगा उसे उस केस को अलाउट करना। डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं, तो फैमिली से रिलेटेड, क्राइम से, सिविल से, एंड अलग अलग एडवोकेट डिफरेंट डिफरेंट केस को हैंडल करने के लिए सक्षम होते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग डीएमएस भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल भी कह सकते हैं इसे। मैनेजिंग द प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन। थर्ड इज कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज आल्सो important because maintaining communication between client, lawyer and court, this is the most important, because if there is increase of heat and noise, then your case will be destroyed. The deadline tracking, risk management, monitoring important date to avoid delay and missed डेडलाइंस। जैसे कि हम लोग ने पहले बात की थी कि हम लोग को देखना चाहिए कि हमारी हियरिंग की डेट कब आ रही है, एंड उसके अगर वो मिस हो जाती है तो कोर्ट को भी लॉस होता है, क्लाइंट को भी लॉस होता है, और जो लॉयर होता है उसको भी लॉस होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. Carry on. थैंक यू। क्वालिटी मैनेजमेंट इन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट है एसओपी, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं, जो कि इंश्योर करता है लीगल सर्विस मीट प्रोफेशनल और इथिकल स्टैंडर्ड। हम लोग को इथिकल स्टैंडर्ड आता है कि हम लोग फर्स्ट हम लोग का जो पहला मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड सेकंड इज एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, जिसे हम लोग यूसीसी भी कहते हैं। मेंटेनिंग करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन ऑल केस फाइल्स, हम लोग को उसमें देखना रहता है कोई गलती तो नहीं हुई है फाइलिंग के दौरान, या अगर हुई है तो उससे कैसे सुधारें। एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, evaluating the efficiency and effectiveness of legal work। हम लोग को काम को इतने बारीकी से करना रहता है कि उसकी जो प्रभावशीलता होती है ऑफ लीगल वर्क वो अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे, और क्लाइंट की तरफ से कोई भी उसका गलत ना आए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इसका हम लोग इनोवेशन भी कह सकते हैं। रेगुलरली इंप्रूविंग प्रोसेस
and service for better result. And sixth is e-filing and digital administration. आज के एरा में देखा जा रहा है ई-फाइलिंग का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है. ऑनलाइन फाइलिंग, सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वे थ्रू कोर्ट पोर्टल. हम कोर्ट में ई फाइलिंग भी कर सकते हैं. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं. क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं. पीआई का भी यूज करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में बताया है कि किस लिमिट तक हम लोगों को पीआई का यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मेंटेनिंग डिजिटल रिकॉर्ड फॉर इजी एक्सेस एंड रिट्रीवल. हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं. केस को, कई सारे केस लॉस होते हैं उसको ढूंढने में, जो आज के समय में बहुत ही साबित हो रहा है. डाटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल लीगल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. हम लोग को डाटा सिक्योरिटी इस तरह करनी है कि किसी थर्ड पर्सन तक हमारे क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ना हो. Benefit of waste management systems: time efficiency, reduce the time required to manage and process cases. Better organization, which help maintaining systematic record and schedules. Reduce heat and noise, which we already discussed in slide. Minimize mistake through proper tracking and documentation. And fourth is control of non-conforming output. Challenges of legal administration. हम जो जानते हैं जहाँ पे बेनिफिट होता है कुछ ना कुछ, तो वहाँ चैलेंजेस आते ही हैं. जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उसमें डाटा मैनेजमेंट का भी इश्यू आता है. उसमें डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन है. टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक सिस्टम फेलियर हो जाता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर इश्यू आने लगते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने लगती है. स्टाफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय रिक्वायर्स ट्रेनिंग टू यूज मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम efficiently. Compliance requirement, ensuring all legal and regularly requirements are followed. The ninth is future of legal administration. फ्यूचर में आने वाला समय हम सब देख ही सकते हैं कि एआई का यूज भी पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया है किस लिमिट तक हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं. ऑटोमेशन टूल सॉफ्टवेयर के ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, स्मार्ट केस ट्रैकिंग. एजेंटिक एआई के थ्रू हम लोग केस ट्रैक कर सकते हैं. Advanced system can provide real-time update on case progress. Digital code, जिससे जो ब्रैकेट में लिखा है CIS 4.0. Court increasingly use technology for hearing, filing, and case management system. We are at this rate your time. Thank you. Okay, thank you for the presentation. Now let's move to the question answer session. If anyone has a query, kindly please raise your hand. Am I audible? Shikha, kindly issue an instruction that all the question shall be taken in one go. That's why if any participant have any questions, you are expected to collect all those set of questions. I will start answering all the question in one go. Okay. So move to the CTO, sir. If you have any question, you may ask. Yes, ma'am, I have a question. Okay. Sir, I want to
I want to more know about the resolution. What is the purpose of a document that has been inculcated named resolution? Okay. Now move to the CPU, sir. Mr. CPU, if you have any question, you may ask. Can you explain workflow system in just a few words? What is the work of workflow, which explained by the CQ, sir? Okay. Now move to COO, sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? No, I presently. Okay, never mind. Move to the Ranbir Singh. If you have any question, you may ask. I think he's out of session. Never mind. Move to HSO, sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? Yes. Okay. Move to HRC, sir. If you have any question, you may ask. Please unmute yourself. They are not replying. Okay, including the question, I'm expecting question from your side too. I have a question that this is the module, which is a internship module, where the internees have performed their activities. Is there any activities report mentioned? Means we have to prepare, or the SLH will prepare the report card? Okay, okay. Just I am going to answer all the questions. What are the set of questions? First question from the CTO is relating to the content of resolution. Second question from the CPU is relating to whom? What were the questions? Again, repeat it. Theme of the question. What is the workplace questions? Okay, okay. Workplace. Okay. And third question is relating to the lab activity report. Activities are reporting areas. Okay. First come at the first questions. What are the contents of solutions which we have placed in the index of our annual report? Actually, resolutions, the annexure, the word resolution in itself include all those activities which we would adopt in the incoming days before going to make any amendment or going to adopt any policy decisions of the board at the executive level. In another way, I would suggest that what are the administrative structure of your firm? Suppose you are having a board member, a board below the board. There would be a council, a group of expert from the in our case, chief from the all department will constitute a council, which will be headed by the CEO. Uh, and at the last at the hierarchy at the bottom there are number of committees. Some committees might be dedicated to a special task, or some committee might be empowered uh, to meet the emerging need of the firm and to meet the objectives of the policy decisions taken by the board member. In these cases, whenever and whatever kind of services are deliberation, if is going to be executed by any of the team members from any department, those action
shall be followed only after passing of resolution by the concerned empowered committee or concerned council of expert or by the board. In all those segments, a grant of approval, the process whereby approval is to be granted, that process is named as resolution. That's why in this index I have placed the resolution. In coming days, you will get proper number system of those resolutions. That's why I have used the word resolutions. And in last financial year report, we have placed a document which cover our financial aspects and what would be our expected required set of activities to meet those aspirational target of uh, certain figure of top line, bottom line growth. Currently, we have used those set of papers in our resolution segment, but in coming days we will include number of document passed by board or council or committee into the resolution section. Could you get the answer of your question, respected CTO? Yes, sir. Okay. On the second point, workplace. What is workplace? Am I right? CPO, your question is about workplace. No, sir, workflow. Workflow. Okay, very good. Workflow. Just going to say, as you have you as I expect that all the participants have gone through the slide, excellent slide presentation of the CTO, wherein he has dedicated a particular slide to the automation and workflow in bracket operation. Actually, workflow is a roadmap which tells us about in which way or through which directions or through which authority our work would flow. The flow of the work might be automated, might not be automated, means thereby some work would flow in automated manner based on certain algorithms, and some work would flow only after giving clearance manually by the concerned authority. तो वर्क फ्लो एक तरीके का हमारा रास्ता होता है कि फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट हम जब जाएंगे तो बीच में कौन कौन से हमारे हैडल या कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे, बेंचमार्क आएंगे जिसको हमें फुलफिल करते हुए आगे जाना है. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे क्लरिकल सेक्शंस में एक फाइलिंग करनी है, तो टास्क है कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन हो गया, केस लिखा जा चुका है, पेज पे आ गया है. अब हमारी एग्जीक्यूटिव टीम को गया, हमने क्या किया, हमारी लीगल टीम ने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया, एक्चुअली डिजाइन ने डिजाइन किया, प्रोडक्शन सेक्शन में गया, प्रोडक्शन ने उसको अपने लेवल पे असेंबली लाइन मैनर में प्रोडक्शन कर दिया. असेंबली लाइन मैनर में मीन्स कि सर्टेन ने रिलीफ डिजाइन किया, सर्टेन ने बॉडी ऑफ द कंटेंट देखा, किसी ने नेक्सस देखा, नेक्सस टाइप किया, सभी की असेंबलिंग कर दिया, असेंबलिंग करके उसकी पैकिंग कर दिया. अब ये गया फ्लोर पे हमारे क्लरिकल टीम के पास, जो हमारे एग्जीक्यूटिव चीफ है, तो अब उनको भी अब उनके लेवल पे वर्क फ्लो उनका अपना है. हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा वर्क फ्लो है. हमारे में जैसे सपोज हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए आया, तो हमारा वर्क फ्लो ये होगा कि आएगा तो हम पहले डिजाइन करेंगे, फिर उसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद स्ट्रक्चर अलग अलग पर्सन्स को असाइन करेंगे, फिर वहां से वो अपने अपने लेवल पे करेंगे, असेंबली लाइन पे उसको लेते जाएंगे, फिर ऐसे असेंबल करके आगे बढ़ा देंगे. ये हमारे वर्क का फ्लो है. वैसे हमारी एग्जीक्यूटिव टीम का फ्लो है कि उनको जब डॉक्यूमेंट मिलेगा, जब एक होते हैं जो पेपर अगर हार्ड कॉपी में मिला तो लेने के बाद फिर उसके देखेंगे पेजिंग, इंडेक्सिंग, ये सब देखेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग सेक्शन में जाने से पहले अपना प्रिंट आउट कराना है, नोटिस रिसीव कराना, फिर रिपोर्टिंग सेक्शन में, रिपोर्टिंग क्लियरेंस के बाद रजिस्ट्री सेक्शन में, फिर वहां से निकलने के बाद डिफेक्ट रिमूव, या इवन रिपोर्टिंग में डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट को कैसे रिमूव करना है, फिर कैसे प्रोसीड करना है. उनके जितने ऐसे स्टेप्स हैं वो उनके वर्क का फ्लो है. इन सारे वर्क के फ्लो को
अगर ऑफलाइन है तो उसको स्टैंडर्डाइज करना, और ऑनलाइन है तो उसको अपने ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट करना, ये सभी हमारे वर्क फ्लो में आएगा। तो वर्क फ्लो एक तरीके की सेट ऑफ एक्टिविटीज है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हेड के अंडर में वो फ्लो करती है और ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और डेफिनेटली यू विल गेट अ स्ट्रांग स्मार्ट एंड स्टेट ऑफ आर्ट वर्क फ्लो in your law firm in the coming days. Did you get your answer? Yes, sir. Thank you, Okay. sir. Last point is relating to the activities report dedicated to the expected from the internees. Okay. Yes. As I have shared with you, our modules have been divided into four sub modules dedicated to practical skills. In those set of practical skills, I have prepared a detailed syllabus, in another word, wherein you will get the answer of your questions. I could refer you in particular for your help to the particular sub modules, but these details you will get directly from the in a document shared within the system by our CPO through the back office. तो उसमें एक्टिविटी रिपोर्ट का है, उसमें ध्यान देंगे कि एक एकेडमिकली जो मूट कोर्ट की सिलेबस है उसमें 2 मूट कोर्ट या 2 विजिट कुछ ऐसे करके मांगते हैं जो एकेडमिक लेवल पे है, और वो इंटर्नशिप के लिए जो वो स्पेस अलॉट करते हैं समर में या सेमेस्टर गैप के दौरान, तो उनके अपने रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हम किसी सेमेस्टर को या किसी यूनिवर्सिटी या किसी फैकल्टी को हम असिस्ट नहीं करते, हम इंडस्ट्रीज में हैं, हम इंडस्ट्रीज के बेंचमार्क को मैनेज को फोकस करेंगे। हाँ, इस बेंचमार्क पे यदि कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट अपने को इंटीग्रेट करना चाहती है तो थ्रू एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो हमारी फर्म से इंटीग्रेट कर सकती है, और इसलिए इसको बनाया गया ताकि हम इसको प्रॉपर डिस्प्ले भी प्रॉपर हम इसको प्रेजेंटेशन भी देना चाहेंगे जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज है अक्रॉस द इंडिया। Actually this product has been in for the sake of smooth communication we are using here a kind of nomenclature like product. uh, this kind of product, that is lab legal entrepreneurship program dedicated for the skilling of the upcoming legal and paralegal, are those who want to integrate it into legal ecosystem. The details of these programs shall be shared through our YouTube platform also, along with universities and institution visit or access or communication made through email, so that they could get details of this particular program, and it is upon them whether they want to collaborate with our law firm or not. I am not here to serve all those universities or institutions, but what we do expect from our intern is that whatever he or she has learned from the firm through its program of LEP, those learnings are expected to be deposited through the worksheet, dissertation or presentation. There is a number of tasks which are included into worksheet. A worksheet is a part of the compliance which we do expect from our internees. So your questions is already having been taken care into our lab program. Did you get your answer, Madam Yes, CRO? yes, yes. Okay. Actually, again, we are going to exceed our, but I would not use the word again. Keeping in mind all these contents and details of the firm, thus my set of presentation is going to be closed, and I am on behalf of our operation chief, I am kindly permit me if my voice is audible to you, respected chief.
I'm going to close this session, but before that, participant may make themselves visible if they want, subject to the privacy, so that our CTO could have it for their digital database. Okay, is it done, CTO? Kindly unmute yourself. No, sir, it's not done. HSO, You are sir, expected to do it. Yes. Raven, sir. Okay. Okay. Nice. Very good. Nice Thank you, work, sir. team. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you.